Hello students, welcome to my channel. In this channel, I will teach the chemistry in simplest way. Today's our topic is periodic table का topic है. I will give a simple trick to find out period, group and block of the elements. Now let's start the session. Now there is a close relationship between long form of periodic table and electronic configuration because the group, period and block to which an element belongs can easily predicted on the basis of its electronic configuration. That is, first हमें उसका electronic configuration लिखना है and from electronic configuration we can predicted the period, group and block of the elements. So generally electronic configuration can be written as NLX. इसे हम electronic configuration लिखेंगे. N indicates the principal quantum numbers and these principal quantum numbers represent the period to which elements belongs. ये N से हमें क्या पता चलेगा कि which period the elements can be belongs. Now L indicates the azimuthal quantum numbers and these azimuthal quantum number represent the block which the elements belongs. जो एलिमेंट्स होगा वो एलिमेंट्स कौन से ब्लॉक में बिलोंग्स है ये इंडिकेट्स होगा हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर से. एंड दिस x रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉन्स वी कैन फाइंड आउट द ग्रुप नंबर्स. सपोज कॉन्फ़िगरेशन 3s1 कॉन्फ़िगरेशन है तो 3 क्या इंडिकेट्स करेगा. 3 indicates the period number, that is the given element is present in third period. S means it represent the subshells azimuthal quantum numbers. Then the elements belongs in S block elements and this electron is a valence electrons. So from this valence electrons we can assign the group number. इसके लिए एक simple trick है. For S block elements तो मैं ये इलेक्ट्रॉन से ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना है. तो सपोज दिस एलिमेंट इज इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स तो एस ब्लॉक के लिए हमें ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज द नंबर ऑफ ग्रुप. जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इज द नंबर ऑफ ग्रुप. मींस इट कंटेन वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इट इज प्रेजेंट इन अ फर्स्ट ग्रुप. ये वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट होगा एंड सपोज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है देन इट इज प्रेजेंट इन अ सेकेंड group. For p block elements, अगर given elements are in a p block elements तो p block elements के लिए हमें group number find out करना है. तो number of groups is equal to 2 plus 10 plus number of valence electrons हमें वहां पे add करने. Suppose 3p2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3p2 तो 3p2 for p block elements के लिए हम क्या ऐड करेंगे 2 plus 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने यहाँ पे 2 एंड उसके एडिशन करेंगे 10 प्लस 4 इज द 14 दैट इज द गिवन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द 14 ग्रुप. नाउ फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ट्रिक क्या है. नंबर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 2 प्लस नंबर ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन्स. जितने n-1d इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें हमें 2 ऐड करेंगे. दिस इज द ग्रुप नंबर फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो ये सिंपल ट्रिक है. फ्रॉम दिस ट्रिक वी कैन फाइंड आउट द पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट्स. इस पे हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द ब्लॉक, पीरियड्स एंड ग्रुप टू विच फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग्स. तो फर्स्ट लेते हैं हम मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12. तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ magnesium is 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2. तो मैं लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना है दैट इज 3s2. दिस 3 इंडिकेट्स द पीरियड नंबर. तो मैं ये 3 इंडिकेट्स 3 क्या इंडिकेट्स कर रहा है पीरियड नंबर्स दैट इज द मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन अ थर्ड पीरियड्स. लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इनटू s orbitals, hence magnesium is a s block elements. And for group के लिए s block के लिए group trick क्या बताइए. number of groups is equal to number of valence electrons. now period लिखेंगे हम
magnesium is present in third period because principal quantum number is a 3. Block magnesium is a s block elements. ग्रुप लिखेंगे, ग्रुप के लिए number of groups is equal to number of valence electrons. Number of valence electrons is a 2, hence magnesium is present in second group. Now next लेते vanadium, atomic number है उसका 23. तो हम फर्स्ट vanadium का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे भी लिख सकते और नोबेल गैस कोर कॉन्फ़िगरेशन है अर्गॉन, अर्गॉन 18, 3d 3 and 4s 2, 18, 20 and 3, 23. Now हमें लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए n-1 d ऑर्बिटल्स लेना है. तो यहाँ पे n क्या आ गया, n इज द फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू d सबशेल्स, हेंस n-1 d इलेक्ट्रॉन्स को लेना है हमें. ऑफ वैनेडियम इज 3d 3 4s 2. तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे period. Vanadium is present in which period? Now period indicates the principal quantum number. Here principal quantum number is the fourth, hence vanadium is present in fourth period. Fourth period में present होगा. Find out करते vanadium is present in which block? Their valence electrons, last electrons enter into d subshell, hence vanadium is present in d block एलिमेंट्स. तो वैनेडियम डी ब्लॉक एलिमेंट है. नाउ नंबर ऑफ ग्रुप के लिए, ग्रुप नंबर इंडिकेट्स करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हम नंबर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 2 प्लस नंबर ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स. नाउ ग्रुप नंबर्स 2 प्लस डी n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 3, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5. तो ग्रुप नंबर क्या आएगा इसका, फिफ्थ. देयरफॉर वैनेडियम बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड. वैनेडियम इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इट बिलोंग्स इन फिफ्थ ग्रुप. क्वेश्चन लेते एसबी एंटीमनी. एटॉमिक नंबर दिया उसका 51. फर्स्ट लिखेंगे हम कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंटीमनी. 51 है तो उसका नियरेस्ट नोबेल गैस आएगा क्रिप्टॉन. क्रिप्टॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 36. तो 4d10 कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसका 4d10 5s2 एंड 5p3. तो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं और नोबेल गैस कोर कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं. 36 प्लस 10 46, 46 प्लस 5 इज द 51. नाउ लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम उसका 5s2 5p3. तो उसमें हम ये कॉन्फ़िगरेशन वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. नाउ 5 क्या इंडिकेट्स कर रहा है उसका पीरियड, नंबर इंडिकेट्स करेगा, p indicates the block and these electrons indicates the group. Now Sb is present in fifth period, that is antimony belongs in fifth period. Last electrons enters into p subshell, hence Sb is p block elements. तो एंटीमनी ये p block elements है. एंड फॉर p block elements हमारे पास ट्रिक क्या है, 2 plus 10 plus valence electrons. That is for group number के लिए 2 plus 10 plus number of valence electrons. That is 2 plus 10 plus valence electrons are 3. That is plus 3. That is 10 plus 5 is the 15th group. That is antimony is belongs to fifth period. It is p block elements and in a 15th group. Now one more question solve करते. Hafnium having atomic number 72. First we write the electronic configuration of hafnium. Hafnium 72 है, उसके nearest Nobel gas configuration कौन सा है, xenon. Xenon having atomic number 54. कॉन्फ़िगरेशन आएगा फिर 4f14 देन 5d2 एंड 6s. कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते और नोबेल गैस कोर कॉन्फ़िगरेशन. xenon is 54. 54 plus 14 is the 68. 68 plus 4 is the 72. तो मैं लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखना है यहाँ पे 5d2 6s2.
5D to 6S2। तो फर्स्ट लिखेंगे हम पीरियड। तो पीरियड्स में n इंडिकेट्स फॉर पीरियड नंबर। तो यहाँ पे n क्या इंडिकेट्स कर रहा है 6, दैट इज हाफनियम इज प्रेजेंट इन 6th periods। नाउ लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू n-1 d सबशेल। हाफनियम इज प्रेजेंट इन d block elements, ये d block elements है। एंड फॉर ग्रुप नंबर के लिए हमारे पास d block elements के लिए ट्रिक क्या है 2 प्लस नंबर ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 2 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स n-1d में कितने 2, दैट इज 2 प्लस 2 4, दैट इज हाफनियम इज बिलोंग्स टू 4th period 6th group and d block elements। I hope you understand this simple trick for find out the period, group and block of the elements. I hope you understand this trick, you like this trick, then please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.